our next chapter will be, or I mean the subchapter of the quadratic equation will be the common roots of quadratic equation. So let me put the heading first. Common roots of quadratic equation. In this subchapter, we will discuss about the common roots of quadratic equation, whether there will be a 2 root common or a 1 root common. Quadratic equation. So there will be some conditions regarding the 1 root common or 2 root commons. So we will discuss about those conditions, and then we try to solve some questions on those conditions so that you get familiar with the conditions or what kind of questions are asked in the exams. So let's move to the heading. The first heading will be only 1 root is common. So how to deal when this condition is given that a particular quadratic or the 2 quadratic equations they share a common root. ठीक है, तो उसके लिए क्या conditions होगी? We'll try to develop that condition. For that we need to consider the quadratic equations. So let's suppose the two quadratic equations are, let the quadratic equations be let's say first quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, and the second quadratic equation, let's say a dash x square plus b dash x plus c dash is equals to 0. These are the quadratic equations, and as we know that these expressions to be quadratic equations, the conditions must be what? A cannot be 0. Similarly, a dash cannot be 0 because the highest coefficient cannot be 0, otherwise it will not be a quadratic equation. It may become a linear equation or a constant. Similarly, a, b, c, a dash, b dash and c dash, all those belongs to the real number. Okay, so let's move ahead. आगे जैसे जैसे अपने पास आएगा वैसे वैसे अपन कंडीशंस को डिफाइन करते चलेंगे. नाउ ये मान के चलिए कि लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट. जो कॉमन रूट है अपना वो अपना क्या है? अल्फा है. लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट. तब आपका देखो क्या क्या कंडीशन रहेगा. देन अगर अल्फा आपका कॉमन रूट है तो अल्फा को आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे, देन अल्फा विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट, सो give it the name 1 and 2. So in the first quadratic equation, if alpha is a common root, that means alpha is root of first quadratic equation as well as the second quadratic equation. So alpha will satisfy both the equations. That means it will become like a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Okay, and from second quadratic equation it will look like a dash alpha square plus b dash alpha plus c dash is equals to 0. अब ये आप लोगों को मिल गया. कैसे? एक ही वेरिएबल में आपकी क्या आ रही है? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं. ठीक है, अल्फा क्या आपका एक वेरिएबल है. तो इस टाइप की इक्वेशंस को आप जब 9, 10 थे वहाँ पे भी आपने देखा था, लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व करते थे ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, और बाय एलिमिनेटिंग मेथड, मतलब किसी को एलिमिनेट कर दो, है ना, वहाँ से, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो.
तो अगर इनको आप सोल्व करो, सोल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सोल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आप सभी के सभी लोग फेमिलियर हैं इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है आपका, कि आप क्या करते हो कि इसमें ये देखो कि जो डिग्री है वो किस किस वेरिएबल की क्या क्या पोजीशंस है। वेरिएबल की पहले है 2 डिग्री, फिर वेरिएबल है 1 डिग्री में। यहाँ पे वेरिएबल आपका किस में है, 0 डिग्री में, ठीक है। तो अल्फा किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपकी 1, इसलिए लास्ट में क्या रखेंगे अपन 1। तो अल्फा स्क्वायर का एक टर्म्स आएगा, नीचे कुछ रखेंगे अपन। सिमिलरली आपका अल्फा का एक आएगा, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा का, और लास्ट में आपका कोफिशिएंट अल्फा की पावर 0 विच विल बिकम 1, तो 1 का, ठीक है। अब देखिए कंडीशन कैसे रखते हैं अपन। कंडीशन छोटे क्लास में देख रखा होगा आपने। क्या करते हैं अपन कि इनको पहले रखते हैं। ये जो है ना कोफिशिएंट, अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस कॉलम को अपन भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले ये रखेंगे बी डैश, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट वाला सी डैश, मतलब जिसका यहाँ पे आ रहा है ना उसके कोफिशिएंट को अपन नहीं रखते। सिमिलरली आप अल्फा है तो अल्फा का कोफिशिएंट को भूल जाओगे, तो आप क्या रखोगे, एक साइकिल चलता है तो साइकिल चलते रहना, सी डैश आ गया ना तो यहाँ पे भी सी डैश आएगा ऐसे, ठीक। अब क्या आएगा ए डैश, अब यहाँ पे ए डैश आया तो ए डैश यहाँ आएगा, और उसके बाद बी डैश, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करते हैं अपन, अब इनको सोल्व करते हैं अपन। कैसे सोल्व करते हैं कि ऐसे और ऐसे रहता है। होपफुली आप सब लोगों को पता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से अगर इनको सोल्व करोगे आप तो क्या क्या मिलेगा वो सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ ना। अब मान के चलिए कि इनको मैं कुछ सोल्व करना है मेरे को, तो इनको मैं कुछ नेमिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो वो नेमिंग अपन कैसे करेंगे वो देखिए अभी आप। अगर इन दो से मैं ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, कंडीशन में एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, कंडीशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इन दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे, चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशंस को रख ही देता हूँ, सोल्व कर देते हैं पहले अपन इसको। तो ये क्या बनेगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ठीक है। पहले सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में जाके मैं इसको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में रख दूंगा तो वो ईजी रहेगा अपने लिए उसको ऑब्जर्व कर पाना, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका सी ए डैश या ए डैश सी माइनस ए सी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। अब आप उठा लीजिए इन दो को, पहले इन दो को सोल्व कीजिए और फिर इन दो को सोल्व कीजिए, तो वहाँ से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी। क्या कंडीशन मिलेगी, देखो पहले से क्या कंडीशन मिलेगी इन दोनों से, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा अल्फा और अल्फा, देखो एक कैंसिल आउट हो गया तो मैं सीधे लिख रहा हूँ अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से एक कंडीशन निकल के आ जाएगी, क्या ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, देखो अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, पहले इन दो को ही देखो बस, इसको भूल जाओ अभी। इन दो को देखोगे तो दोनों साइड है अल्फा अल्फा, देखो दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ये वाला क्या चला जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा इस साइड, तो बी डैश सी ये आएगा। तो ये आ गई अल्फा की एक वैल्यू, ठीक है। लेट से ये आपका एक स्मॉल ए नाम दे देते हैं, या फिर इसको सेकेंड इक्वेशन दे चुके थे तो ये थर्ड दे देते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली जब आप इन दो को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से देखो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा, ये वाला ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, तो ये कंडीशन आ गई। अब देखो ये कंडीशन किसके लिए आई है, दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, लेट्स से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों की दोनों कंडीशंस क्या है, देखो किसके लिए आ रही हैं, अल्फा के लिए आ रही हैं। अल्फा अपना क्या था, अल्फा इज और कॉमन रूट, दैट मीन्स कॉमन रूट की कंडीशन आ गई, क्या दो कंडीशन आ गई हैं, तो क्या दोनों याद रखनी है या दोनों में से कोई एक याद रखनी है। तो देखिए हो क्या रहा है, दोनों की दोनों क्या है, अल्फा की वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ
यहाँ से फ्रॉम 3 and 4, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जब मेरा अल्फा लेफ्ट हैंड साइड मेरा अल्फा अल्फा है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। तो मैं इनको इक्वल पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से जो मेरा कोफिशिएंट है ना उनके टर्म्स में मेरी कोई कंडीशन आ जाएगी, वो आपको याद रखनी है। जब आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका एक रूट कॉमन है, तो वो आपको कंडीशन अप्लाई कर देनी है। कौन सी कंडीशन है, अभी देखो जनरेट कर देते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लिए। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों की दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा क्या आएगा, बी सी डेस माइनस बी डेस सी, ए बी डेस माइनस ए डेस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए डेस सी माइनस ई ए सी डेस का पावर 2। तो ये एक कंडीशंस निकल के आ गई मेरी, ये कंडीशन निकल के आ गई। इसको आपको याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखो ये कंडीशन थोड़ी सी अजीब सी है ना, याद रखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आप लोगों को, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो ये एक्चुअल में क्या है, एक ये आपका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। वो किस टाइप की डिटर्मिनेंट होगी वो चीज़ देखिए, मैं मेंशन कर देता हूँ ना। देखो ये वाला वैल्यू है वो क्या एक्चुअल में आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी डेस, है ना। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे है ना, यही वाला है। देखो ये कुछ अलग नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक मॉडुलस वाला टर्म्स लगा दूँ ऐसे कुछ, है ना, या फिर दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। अगर आप 11th क्लास से हो तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आप डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी करोगे। अभी बता देता हूँ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें आप एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है और उसके बाद अपन उसको यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा अभी यही है कि उसको ऐसे के ऐसे ही फॉर्म में याद रखो। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है आपका वो एक्चुअल में क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा, ये लिखना आपको बी, तो ये सी डेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आता है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आता है, बिकॉज ये एक ऐसे मल्टीप्लिकेशन है वो तो पॉजिटिव के साइन साथ के आता है, बट ये वाला मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डेस और यहाँ पे सी, तो ये आपका एक बन गया डिटर्मिनेंट। इसी डिटर्मिनेंट के मल्टीपल में कौन सा है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इसमें आपका क्या आएगा, ए डेस बी बी डेस। तो डिटर्मिनेंट को देखो ओपन कैसे करते हैं ना, ये है, इसको मैं डिटर्मिनेंट में कैसे फॉर्म रिप्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे, और डिटर्मिनेंट को मैं इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी डेस पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, बी डेस सी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। देखो ए बी डेस पॉजिटिव साइन के साथ, ए डेस बी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है ना सब, और ये क्या होगा आपका सी। ये देखो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, देखो क्या आ गया, बी 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 डेस सी सी डेस, फिर क्या आ गया आपका ए डेस बी बी डेस। ठीक है, ऐसे आ गया। अब ये वाले को आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी सी डेस ए डेस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको रिमेंबर या याद रखना, आपको ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो मेमोराइज कर लो इसको आप। ठीक है, क्या रहेगा आपका, अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता तो हो सकता था आपके लिए और इजी हो जाता ना। क्या करता, इस डिटर्मिनेंट को मैं थोड़ा पहले लिख देता, तो आप क्या करते, सीधे ही कंपेयर कर पाते इससे इससे। ठीक है, तो कॉमन रूट है तो उनके लिए देखो क्या कंडीशंस निकल के आएगी, इनको आप चाहो तो यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे डिटर्मिनेंट बनाना, आपको कौन सा, ये कोफिशिएंट लिख दो, ए डेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट बी बी डेस लिख दिया, ये अब डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट मल्टीपल में होगा कौन सा, इसी को वापस उठा लो, बी बी डेस सी सी डेस का मल्टीपल हो गया। अब चलिए आगे, इस साइड क्या आएगा आपका, जहाँ ब्रेक किया वहीं से स्टार्ट कर दो वापस, सी सी डेस ए डेस उसका होल स्क्वायर। तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी डिटर्मिनेंट की, अगर कॉमन रूट है तो। ठीक है,
इसको आप याद करने की कोशिश करो। क्या करना है, अगर ऐसा बोल दे कि एक ही रूट कॉमन है तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को लिख देना है ए डेस बी डेस, फिर साइकिल बनानी है आपको। तो देखो ए बी सी ए, ऐसे साइकिल चलेगी। तो ये हो गई आपकी कंडीशन कि अगर आपका सिर्फ एक रूट कॉमन हो तो। अब अगर आपको दो रूट कॉमन मिल जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, चलिए उसको भी ऑब्जर्व करते हैं ना। दिस विल बी योर सेकंड केस। when both roots are common, ठीक है। अब देखो दोनों के दोनों रूट आपके क्या है, कॉमन है। अब सोच के देखिए कि पहले था अपना एक ही रूट कॉमन, अब देखिए पहले एक ही था, अब दो रूट कॉमन आ गए। तो दो रूट कब कॉमन हो सकते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं, दो ही रूट होंगे, और दो ही रूट ही होने। दो से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके दोनों रूट ही कॉमन है, ठीक है, दोनों रूट आपके कॉमन है, तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपकी इस टाइप की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उनके कोफिशिएंट्स क्या हो, सेम हो। ए डेस एक्स स्क्वायर प्लस बी डेस एक्स स्क्वायर प्लस सी डेस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होने चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कौन कौन से, ए और ए डेस इक्वल होना चाहिए, बी डेस और सी डेस, तभी ये क्या हो सकते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती है ना। अब देखो सेम हो सकते हैं या सेम रेशियो में हो सकते हैं, ठीक है, आप इनको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो तब आपके रूट क्या आएंगे, सेम आएंगे, अदरवाइज रूट कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो वहाँ से अगर आप देखना चाहो तो आपकी ये कंडीशन निकल के आएगी कि इनका जो रेशियो है ना, ए अपॉन ए डेस इज इक्वल्स टू होना चाहिए बी अपॉन बी डेस इक्वल टू सी अपॉन सी डेस। ये आपकी कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। जो रेशियो है कोफिशिएंट्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स। फिर से बता दे रहा हूं मैं कि ये कंडीशन मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दोनों इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस विल हैव बोथ रूट्स कॉमन। किस केस में, जब वो दोनों के दोनों क्या बन जाएं, आइडेंटिकल, ठीक है। इफ दे आर आइडेंटिकल तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कब हो सकती हैं, दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ ए डेस बी डेस एंड सी डेस वो क्या हो जाए, आपके सिमिलर हो जाए, ठीक है, या फिर आपके क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है, तभी ये सेम हो सकता है। अब देखो बात वही है, प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको लिखूं 2/3 लिखूं और मैं लिख दूं कि 4/6 लिख दूं, 2/3 और 4/6, क्या बताओ, क्या दोनों चीज़ सेम है, बिल्कुल सेम है। तो उनके आप रूट भी चेक करोगे ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान के चलिए यहाँ 2 आता और यहाँ 3 आता, और यहाँ पे मान के चलिए कि 4 आता और 6 आता, यहाँ पे सेम नंबर आता, मतलब इस सेंस में, तब भी आपका क्या होता है, रूट से सेम ही आते। रूट सेम आते तो उस केस में आपके क्या हो रहे हैं, कोफिशिएंट्स एक्चुअल में उनका रेशियो ना वो सेम आता। कैसे, देखो 2 यहाँ पे 4 आता मान के चलिए, तो 2/4 1/2, ये क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 6, 3/6 1/2। तो ऐसे आपका रेशियो सेम आता, रेशियो सेम आता तभी वो क्या हो सकती है, आइडेंटिकल हो सकती है। तो पहला कंडीशन तो आप किससे देख सकते हो कि वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, तब आप उस चीज़ को बता सकते हो ना। तो आइडेंटिकल, अदरवाइज देखिए आप क्या करो, आपको पता है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और दोनों के दोनों रूट सेम है। तो मान के चलिए रूट आपके कॉमन रूट क्या है, अल्फा बीटा है, कॉमन रूट है, अल्फा बीटा क्या है, आपके कॉमन रूट्स हैं। अब अल्फा बीटा कॉमन रूट्स है, तो मेरे को ये बताइए इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस से, इससे क्या आएगा, दोनों का सम -b/a आएगा ना।
और उससे क्या आएगा, अगर उससे भी आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा ही आएगा ना, बिकॉज दोनों रूट तो सेम है दोनों के, तो वहाँ से आपका क्या आएगा माइनस बी डेज अपॉन ए डेज। ठीक, ये हो गया आपका सम से। अब दोनों का सम सेम है तो ये कंडीशन आई। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी ना। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस बी डेज बाई ए डेज। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए अपॉन ए डेज इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डेज। नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बी अपॉन बी डेज। ये कंडीशन आ गई। ऐसे ही देखो, ये तो सम रखने पे आया, दोनों के प्रोडक्ट भी तो सेम होंगे। वो क्या होगा आपका, सी बाई ए होगा पहले केस में, और दूसरे केस में क्या होगा, अल्फा बीटा विल बी सी डेज बाई ए डेज। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी बाई ए इज इक्वल्स टू सी डेज बाई ए डेज। अब यहाँ से आपको फिर क्या मिलेगा, ए अपॉन ए डेज इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी डेज। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ से यू विल गेट द कंडीशन ए अपॉन ए डेज इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डेज इज इक्वल टू सी अपॉन सी डेज। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले केस में मैंने क्या बताया कि वो दोनों आइडेंटिकल है तभी दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। अगर वो दोनों के दोनों कॉमन है दैट मीन्स दीज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल। ठीक है, अगर आपको इन केस आपको पहला मेथड नहीं समझ में आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर द मेथड सेकेंड। इन दिस मेथड, as you know that it is already mentioned that alpha beta are the 2 common roots. If they are the common roots, then the sum of the roots will be same. So in this case, the sum of the roots in the first quadratic equation is minus b by a. In the second quadratic equation, it is minus b dash by a dash. So as we know that the left hand side represent the sum of the common roots, and as you know that the sum of the common roots are same, that is the reason that the right hand side of these 2 equations must be same. So I put them as a like this. So we will get the condition this. ठीक है, this is our first condition. Similarly, as we know that the product of the roots is in the first quadratic equation is c by a, and in second quadratic equation it is c dash by a dash. So product आपका क्या है, सेम है। So क्या होगा आपका, ये दोनों सेम होंगी तो आपको ऐसे मिलेगा। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, when you compare these 2 expressions, you will get these results, and this is the condition for 2 common roots of 2 quadratic equations. So do memorize this condition. This will help you in identifying the questions and solving the questions. ठीक है, these are the 2 cases. So we have studied these 2 cases. Now let's move to the question section.